Hello everyone, welcome back. So, we are in EVRS, and even in the last class have we have done one of the posting, and we have seen like how jail accounts gets triggered, right? Now, we will post 3 more transactions, and then I think the concept of EVRS will be clearly understood. So let's log into our SAP account. First, we will check how much balance is left. ठीक है? To our GL account, and 1030 was our main bank account, right? Main bank GL. We will see how much balance is there. Fine. There is 25,000. Now, what we will do, we will make the second posting which is related to बैंक charges. ठीक है? Say हमने बैंक charge का posting हम करते हैं. So here I will write it down, and since see there is no incoming and outgoing bank involvement in this, तो ये directly हमारे main bank account से deduct होगा. अगर आप लोग को याद हो लास्ट क्लास में जब हमने पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर किया था, तो पहले हमने क्या किया था, FP70 में we have posted the invoice and then we have made the payment, right? Because there was an involvement of incoming bank. So हमें एक source transaction या एक prior एक transactions carry करनी होती है. लेकिन जब बैंक चार्जेस हो या बैंक इंटरेस्ट हो या एनी सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली मेन बैंक में इम्पैक्ट हो रहा हो, तो उसमें हम कोई प्रीवियस पोस्टिंग नहीं करते हैं. ठीक है? अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है. तो डेफिनेटली अब 25,000 रुपीज है. द थिंग एवरीथिंग इज डन, वी हैव क्रिएटेड द जीएल पोस्टिंग रूल डिफाइंड, सब कुछ हो चुका है. अब हम क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो भी इम्पैक्ट होगा it will be like what? We have to definitely upload the bank statement, right? So let's see. We will open our BS जो हमने create किया था. Now what the necessary changes we have to do? We will change the date from 19 to 20. Let the account number will be same only. हम वन में ही करेंगे. अगर कोई previous कोई है बैंक, अगर statement अगर generate हुआ है, हम उसको delete कर देंगे SE38 में जाके. ठीक है? Now credit balance is of 25,000 rupees. Fine. Here also we will change the date from 19 to 20. Fine. Now definitely अब यहाँ पे भी 20 आपको मेंशन करना होगा. प्लीज बी माइंडफुल while मेकिंग ऑल दिस चेंजेस, बिकॉज थोड़ी सी गलती आपका पूरा एंट्री को गलत शो कर सकता है या इवन वो पोस्टिंग भी नहीं होगी. तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस द कोज और द इश्यू कि कहाँ से ये अराइज हो रहा है. तो बी वेरी माइंडफुल. ओके. नाउ कमिंग टू बैंक चार्ज. तो एंट्री क्या होती है, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक अकाउंट. तो ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम द मेन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये तो डायरेक्टली हमारे मेन बैंक से डिडक्ट हो रहा है, तो इट विल बी डेबिट बैलेंस एंड लेट द अमाउंट विल बी 4,000 इटसेल्फ. ठीक है? अब वापस से हमें डेफिनेटली एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप में चेंज करना है. सो आप NCHK के बजाय NCHG लिख दोगे. ठीक है? Consider this that you have to change your external transaction type. NCHG already है. अब चाहो तो रेफरेंस दो, या आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, या स्लैश स्लैश भी दे सकते हो. Now definitely you have to mention the nature of your transaction. Now अगर कोई 25,000 आप bank is liable to pay out of 25,000, if 4,000 as is deducted as a bank charges, still bank is liable to pay 21,000 rupees, right? So bank के main bank के point of view से it is still there is a liability of 21,000 rupees. So here we will write as C, and यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 19 को क्या कर दोगे, 20 कर दोगे. ठीक है? That's all. Perfect. 25,000 minus 4,000, 21,000. ठीक है? हम इसको सेव कर लेते हैं. नाउ कमिंग टू योर एससीपी. तो अब हम क्या करते हैं, पहले कोई
पुराना बैंक स्टेटमेंट हमारा जनरेट ना हुआ हो, वो श्योर करने के लिए कम टू SE38। हियर यू विल गिव योर प्रोग्राम नेम एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है, यहाँ पे आप 0001 क्यों लिखते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत ऑप्शंस होता है, तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो इसलिए द कोड इज 0001। ठीक है, now execute it. Once you execute it, you can delete, and now we can come and upload the bank statement. So come and FF_5. ठीक है, now come here. MT940 is the international format which is accepted everywhere, and from here we will accept the text document. ठीक है, तो हमारा डॉक्यूमेंट यहीं कहीं था, here new text document। ठीक है, just attach it, import data में check mark करोगे and print bank statement and execute it, allow, and it will say कि definitely कोई पुराना बैंक स्टेटमेंट नहीं है, that's okay, process it। ओके, नाउ देखो अभी यहाँ पे ये हमारा शो नहीं हो रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हुआ है। अगर जैसे हमने कस्टमर के समय किया था, तो हमें ये आई वी गॉट एन information that this particular document number has been posted successfully। अभी कोई जनरेट नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट नंबर, दैट मीन्स सिस्टम लेट हो रहा है, आप देख भी रहे हो 25,000 minus 4,000 21,000, but still document is not generated, so definitely there is some issue। So what is that issue? For checking the error, we will go to FEBA and come here and give your company code and give your house bank which was HDFC 9, right? And यहाँ पे आप है ना all line item करो and execute it। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ एरर का पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पे है। Now can you see this log? Come to log, and here we can see that field BSEC ZUONR does not exist। Now ZU/FB50 अगर आप करते हो, and if you come to assignment field, press function F1 button। I think ये assignment field का ही technical name है। Can you see ZUONR? So what we will do now, we are functioning on bank charges। ठीक है, that means कि definitely कुछ field से related issue है, तो first हम check करेंगे OBC4, है ना, field से status, field से related कुछ assignment से related issue है, so you will give your field status variant and come here and come to your field status group। now हम G001 check कर लेते हैं। लेट्स सी वेदर कोई असाइनमेंट फील्ड सप्रेस्ड तो नहीं है ना, नहीं यहाँ पे सप्रेस्ड नहीं है। इवन वी कैन चेक G005 एज वेल, बिकॉज वो भी हम बैंक स्टेटमेंट के लिए व्हेन वी क्रिएटेड HDFC मेन बैंक, इनकमिंग बैंक एंड आउटगोइंग बैंक, तो हमने यही अपना FSG दे रखा था। यहाँ तो सब परफेक्ट लग रहा है, एंड द सेम कंट्रोल ऑफ फील्ड इज इन द पोस्टिंग की, राइट? So come to OB41, एक बार इसमें भी देख लेते। इट इज रिलेटेड टू बैंक चार्जेस, सो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू मेन बैंक। तो एक बार तो हम ये चेक कर लेते हैं, चलो बैंक चार्जेस यहाँ पे भी ऑप्शनल है, एंड बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक, सो मेन बैंक इज लाइक पोस्टिंग की 50, राइट? एक बार हम 50 भी चेक कर लेते हैं कि असाइनमेंट फिल्ड मेनली सप्रेस्ड होगा कहीं पे, तो वही चीज हमें चेक करना है। कम टू 50, और अगर वो नहीं है तो देन देयर विल बी सम अदर इशू व्हिच वी हैव टू फिगर इट आउट। So here we can see the assignment field number is suppressed। Let's keep it as optional, और एक बार हम ट्राई करके देखते हैं दोबारा से। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, वापस से SE38 में आएंगे एंड वी विल एग्जीक्यूट इट, एंड वी हैव टू फर्स्ट डिलीट द प्रीवियस जो हमारा जनरेट हुआ है। ठीक है, now we have deleted it। now coming again to /FF_5। ठीक है, अब हम देखो बार बार यहाँ पे आके ये चीज करते हैं, इससे अच्छा और एक तरीका है कि आप इसको इस
पूरे प्रोसीजर को सेव कर लो एज ए वेरिएंट। तो कैसे सेव होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले आप जो प्रीफिल जो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे आप करोगे। इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट बैकग्राउंड, यहाँ पे कहीं पे सिस्टम या गो टू में कैन यू सी वेरिएंट, सेव एज वेरिएंट कर देना, ठीक है। जब सेव एज वेरिएंट कर देते हो तो आपको कुछ भी लिखना है, जी लिख देती हूँ, चलो मैं जी लिख देती हूँ एंड जस्ट सेव इट नाउ। तो अब आप क्या करोगे ना, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वापस से अगर आप सपोज बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू कम दिस द सेकेंड ऑप्शन, गेट वेरिएंट एंड जस्ट गिव योर वेरिएंट नेम, ठीक है, Z और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रीफिल्ड आएगा, तो आपको बार बार करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम चलो देख लेते हैं वापस से हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं तो वापस से हम वी हैव टू एड्रेस देयर कुड बी सम अदर इशू। एग्जीक्यूट इट and this time it got posted. Can you see document 1223 was posted and यहाँ पे शो भी हो रहा है 21,000। अगर हमें वापस से अगर स्लैश एन एफ पी एल 3N चेक करना है तो डेफिनेटली उसमें भी हमारा क्या शो होना चाहिए, 21,000, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ तक सब कुछ चल रहा है सही। अब क्या है, अब जैसे आप लोगों को पता है कि जब हम जीएल अकाउंट असाइन करते हैं, ओटी आई रिमेम्बर्ड इट इज लाइक स्लैश एन ओटी 83, राइट। तो आप लोगों को ये पता है कि ये बात हटाते हैं, असाइन बैंक, असाइन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन टाइप टू पोस्टिंग रूल। एंड हमने जब डिफाइन किया था पोस्टिंग रूल, तो एक बार हम अपना एक कोई भी ले लेते हैं, से अगर हम इनकमिंग बैंक ही लेते हैं, से फॉर एग्जांपल, तो हमने ये देखा था कि पोस्टिंग रूल में हम अकाउंट सिंबल असाइन करते हैं एंड फिर हम अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट जीएल अकाउंट असाइन करते हैं। तो देखो, एक तो ये है कि हम पोस्टिंग रूल है, ठीक है, हमारा ये पोस्टिंग रूल है। हमने पोस्टिंग रूल के अगेंस्ट क्या असाइन किया, अकाउंट सिंबल, और उसके अगेंस्ट असाइन करते हैं अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट जीएल। तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि सीधा पोस्टिंग रूल के अगेंस्ट ही हम जीएल असाइन कर ले। तो कुछ तो रीजन होगा ना कि एसएपी ने ये तरीका बताया है कि पोस्टिंग रूल के अगेंस्ट पहले आप अकाउंट सिंबल असाइन करना और फिर उसके अगेंस्ट जीएल असाइन करना। सो देखो, रीजन सिंपल सा बात है। अगर आप लोगों को पता है तो अभी हमने क्या कर रखा है, इस MB89 और IB89 अगर देखा जाए तो हमने इन अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट, इन अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट कौन सा जीएल असाइन किया है, HDFC बैंक का, राइट। HDFC मेन बैंक, HDFC इनकमिंग बैंक, HDFC आउटगोइंग बैंक। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही बैंक होगी और या एक ही बैंक से सब ट्रांजैक्शन होगा। देयर कुड बी मल्टीपल बैंक, राइट। तो जब मल्टीपल बैंक होगा तो क्या तरीका है फिर, तो डेफिनेटली अभी तक अगर आप लोगों को जितना समझ में आया, आप लोग ये बोलोगे कुछ नहीं, सिंपल है, फिर हम पोस्टिंग रूल को वापस से अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट असाइन करेंगे और उसका नया जीएल असाइन कर देंगे। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये आप कर नहीं सकते हो। क्यों? पहली बात तो आप पहला जो फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, पहला फर्स्ट स्टेप आप ये करते हो कि आप पोस्टिंग रूल को पहले एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप के अगेंस्ट असाइन करते हो, राइट। फिर पोस्टिंग रूल के अगेंस्ट असाइन करते हो अकाउंट सिंबल, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, और फिर अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट असाइन करते हो जीएल। आप जो बोल रहे हो कि ये भी तो तरीका अपना सकते हैं कि पोस्टिंग रूल के अगेंस्ट जो भी है, हम ये कर सकते हैं कि हम डिफरेंट पोस्टिंग रूल डिफाइन कर ले। मतलब जैसे हमने अपने बैंक के लिए किया IB89 और कौन सा OG89। हम अगर सपोज ये तो HDFC बैंक के लिए है, वैसे ही अगर आप बोलोगे कि हम सपोज हमारा HSBC बैंक है और HSBC बैंक के लिए हम एक नया मेन बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं लाइक HS89, एंड इनकमिंग बैंक के लिए हम कर सकते हैं लाइक HI89 इनकमिंग, एंड आउटगोइंग के लिए HO89।
ऐसे कर देंगे पोस्टिंग रूल डिफाइन, और फिर इसके अगेंस्ट हम डिफाइन कर देंगे जो भी हमारा अकाउंट सिंबल है। लेकिन अकाउंट सिंबल तक तो हम बाद में पहुंचेंगे। पहले ये सब जो पोस्टिंग रूल है, ये हमारा डिफाइंड कहाँ पे होता है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप में। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप अगर ये कर रहे हो तो आप एनसीएच के, एसजी, एनसीएच के, एनसीएच के, एन एन इसके अगेंस्ट तो आपने एचडीएफसी का डाल दिया। अब आप वापस से सोचोगे कि क्योंकि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप आप तो क्रिएट करते नहीं हो, बैंक ही देती है। अब बैंक तो अलग अलग तो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन टाइप आपको देगी नहीं। आपको बैंक अगर समथिंग इज रिलेटेड टू इनकमिंग transaction, it will be NCHK. If it is related to bank charges, it will be NCHK. HG. If it is related to bank interest, it will be NINT. And जो भी माइनस प्लस, तो ये बैंक तो एक ही बार देगा। बैंक आपको मल्टीपल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन टाइप नहीं इश्यू करेगा। तो आप बोलोगे कि हम यही चीज वापस से यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे वापस से हम डिफरेंट पोस्टिंग की लिख देंगे फॉर किसके लिए? एचएसबीसी के लिए, विच इज परफेक्ट। आप जो सा सोच रहे हो, जितना आपको समझ आए अभी तक मैंने समझाया है, आप सही जा रहे हो। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर कि अगर आप ऐसा करोगे ये आपको एरर बताएगा, क्योंकि आप एक ही एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप के अगेंस्ट मल्टीपल या डिफरेंट पोस्टिंग रूल डिफाइन नहीं कर सकते हो। ये चाहो तो आप अपने एंड से देख भी लेना, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी होता था कि ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने खुद अपने एंड से ट्राई भी किया था, एंड आई reach to a conclusion that only one external transaction type can be assigned to only one posting rule. तो जब there is no option कि same external transaction type cannot be assigned to different posting rule, so here the concept of masking comes into picture. अब masking क्या है? मास्किंग का मतलब है कि एक तरीके से क्या है, मुखौटा पहन लेना। एक तरीके से कोई चीज को इस तरीके से छुपा देना कि आपको क्लियर तरीके से, जैसे अगर आप लोगों को पता हो, आप भी कभी आ, आप लोग मैसेज देखते हो, राइट? यू गेट ए मैसेज फ्रॉम योर बैंक कि इस पर्टिकुलर 123 अकाउंट नंबर से आपका इतना डिडक्शन हुआ या इतना क्रेडिट हुआ है। सो यही जो होता है ना, स्ट्रिक मार्क या एनी अदर साइन, जिससे हमें पूरा अपने अकाउंट नंबर दिख नहीं पाते, इसी चीज को हम बोलते हैं मास्किंग। और ये मास्किंग मेनली यूज्ड होता है बिकॉज कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो शो करना में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, किसी और को पता चल जाए या किसी के गलत हाथ लग जाए, तो देयर कैन बी एन स्कैम, राइट? सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मास्किंग का यूज होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी मास्किंग का ही यूज करेंगे। अब मास्किंग का यूज कैसे करेंगे, चलो इसी चीज को समझते हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज एक एचएसबीसी बैंक ही ले लेते हैं। सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, कम टू FS00, FS00, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट ए अनदर बैंक। तो 130 है, जैसे मैंने बोला था लास्ट डिजिट हमेशा सेम रखना, तो अब नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, 1040, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं HSBC मेन बैंक, बाकी सब कुछ सेम है, सेव इट, ठीक है। अब वैसे ही हम इनकमिंग बैंक को भी कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे भी HSBC, सेव इट। लास्ट आउटगोइंग बैंक है 1042, और यहाँ पे भी आउटगोइंग बैंक के लिए HSBC, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड ए डिफरेंट बैंक दिस टाइम। नाउ डेफिनेटली आप लोग को पता है मेन बैंक को हम हमेशा असाइन करते हैं हाउस बैंक के साथ,
तो हम यहाँ पे भी असाइन करेंगे. सो लेट्स ओपन इट नाउ /n fi12. ठीक है. And this time we will create a new house bank. So new entries करो and HSBC and here maintain and here you will write as HSBC only. Just press enter. कोई क्रिएट किया नहीं है तो हम कोई बात नहीं, हम क्रिएट कर लेते हैं. HSBC बैंक हो गया. महाराष्ट्र, कोलशित रोड, सिटी हानी, कोलशित रोड, ये लिख देते हैं. ठीक है. Save it. Now come to bank account. New entries. We will write HSBC, HSBC Bank. This time definitely हम 8,000 और 8,000 दे देते हैं. ठीक है. और GL हमने 1040 क्रिएट किया था and currency for INR. That's it. So we have created a new house bank. अब definitely ये हाउस बैंक हमने क्रिएट तो कर दिया, बट आप लोगों को पता भी है कि हम ये जो अकाउंट आईडी है एंड इट कम्स टू EBRS, हम इसको OT83 में डिफाइन भी करते हैं. तो वी विल कम टू OT83 नाउ. नाउ सी व्हाट ऑल नेसेसरी चेंजेस वी विल डू. ठीक है. तो हम क्या करेंगे अब दिस टाइम. ट्रांजैक्शन टाइप तो अब सेम ही रहेगा. द ओनली थिंग विल बी चेंज्ड इज दैट कम हियर एंड दिस टाइम डेफिनेटली come to new entries. अब एक नया बैंक की हमने क्रिएट किया HSBC. अकाउंट इज 8,000 and the transaction type will be same ZE89. ठीक है. Just press enter and save it. परफेक्ट. अब सब कुछ सेम रहेगा. अब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. द ओनली चेंज, बिकॉज मैंने आप लोग को बताया ही था कि डिफरेंट पोस्टिंग रूल नहीं डिफाइंड हो सकता है, बिकॉज एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप के अगेंस्ट एक ही पोस्टिंग रूल होगा. तो जब एक ही पोस्टिंग रूल है तो डेफिनेटली फिर अकाउंट सिंबल भी सेम है और अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट जो GL है वो बस अब चेंज होगा. तो अब GL कैसे चेंज होगा वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे. In place of incoming bank, main bank and outgoing bank. अब GL तो अब इसमें अभी तक HDFC था, अब HSBC भी आ गया. अब कहाँ पे यहाँ पे GL लिखोगे तो अब ये मास्किंग का रूल अप्लाई होता है. तो अब आप क्या करोगे. प्लस 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 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में 2 लिख दोगे. ठीक है. सेम आप यहाँ पे भी करोगे. 9 टाइम्स प्लस दोगे एंड लास्ट में इसको 0 कर दोगे. एंड यहाँ पे भी वही सेम मास्किंग का रूल आप अप्लाई करोगे. तो ये एक तरीके से क्या हो गया. ये एक तरीके से मास्किंग हो गया. और अब नाउ इट इज नॉट पर्टिकुलर टू एनी स्पेसिफिक बैंक. इट कुड बी एनी बैंक. और वो बैंक कैसे ट्रिगर होगा. जो बैंक स्टेटमेंट में हम अपलोड करते हैं. आप लोगों को पहले इसको सेव करते हैं. अब डेफिनेटली ये भी होना चाहिए कि अब तो हमने डायरेक्टली GL दिया नहीं है, तो अब कैसे बैंक स्टेटमेंट का अब कैसा एग्जैक्टली कैसे बैंक GL ट्रिगर होगा. एग्जैक्टली कौन से बैंक का GL ट्रिगर होगा. तो सिंपल सी बात है ना. अभी तक हम जो ये अपलोड कर रहे थे यहाँ पे हम मेंटेन कर रहे थे ना अकाउंट नंबर. बस अब क्या है. अब अगर HSBC है तो HSBC का अकाउंट नंबर हम मेंशन कर देंगे. बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा. मतलब चेंज हम करेंगे बिकॉज अब हमारा क्या हो गया. अब हमारा बैंक चार्ज के बाद बैलेंस हो गया 21,000 राइट. और अब हम चलो एक काम कर लेते हैं. अब हम वेंडर का पेमेंट करते हैं. तो अब वेंडर का पेमेंट करते हैं तो डेबिट होगा बिकॉज वी आर मेकिंग द पेमेंट. आउटगोइंग बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है राइट. सो लेट्स कीप द वेंडर पेमेंट एज 11,000 रुपीज. ठीक है. तो डेबिट 11,000 हो गया हमारा. तो 21,000 minus 11,000 will be how much. Write here as vendor payment. ठीक है. We will write here as vendor payment. साथ ही साथ हम चेक भी कर लेंगे.
and still there is a balance of like how much 10,000 rupees, which is still a liability from the bank point of view. तो GL कैसे ट्रिगर होगा HSBC का? वही सेम तरीका। अब जब हम बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, एसएपी चेक करेगा कौन सा अकाउंट नंबर है, फिर इस अकाउंट नंबर से बैंक चेक करेगा ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप में अभी हमने मेंशन किया है, आपके सामने ही मैंने मेंशन किया था ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप के अगेंस्ट हमने ये कौन सा अपना कम टू बैंक HSBC, तो यहां से पता चल जाएगा एसएपी को, ओके दिस इज द ट्रांजैक्शन टाइप। फिर ट्रांजैक्शन टाइप के अगेंस्ट एसएपी चेक करेगा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन टाइप से यहां से पता चलेगा विच इज व्हाट एन। अब इस समय क्या होगा हमारा एन, यू हैव टू चेंज दिस ऑल्सो, दिस टाइम वी आर मेकिंग द वेंडर पेमेंट। आउटगोइंग बैंक है मतलब पैसे जा रहे हैं, तो एनसीएच के और प्लस पैसे जा रहे हैं, दैट मीन्स प्लस मतलब कमिंग, माइनस मतलब गोइंग, तो डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे डेबिट है डी, तो यहां से पता चल जाएगा एसईपी को कि ओके सो दिस इज द एक्चुअल external transaction type or the nature of transaction and it is related to outgoing bank। अब सिंपल सा बात है, अब वो पोस्टिंग रूल में आके चेक करेगा। पोस्टिंग रूल में वो आके क्या चेक करेगा, सॉरी फर्स्ट वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन टाइप में जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जस्ट होल्ड ऑन ZD89, वो यहाँ से उसको एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन टाइप से यहां से उसको पता चल जाएगा इट इज OG89। अब वो पोस्टिंग रूल में आएगा, पोस्टिंग रूल में वो अपना अपना पहले सेलेक्ट करेगा पोस्टिंग, यहाँ पे वो अपना OG89 सेलेक्ट करेगा, ठीक है, प्रेस एंटर। यहां से फिर वो डबल क्लिक करेगा डिफाइन पोस्टिंग रूल, हियर जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज OG89 राइट। तो दिस इज द OG89 रूल। यहां से इसको अकाउंट सिंबल का पता चल जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये अकाउंट सिंबल में आएगा और यहां से ये चेक कर लेगा OG89 और MB89। तो OG89 और MB89 के अगेंस्ट जो भी हमारा हमने सेव नहीं किया था क्या, आई थिंक हमने सेव नहीं किया था इसलिए ये शो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम वापस से तो यहां से वो अकाउंट सिंबल के अगेंस्ट आता है एंड हाँ इट इज सेव, और यहां से उसको ये पता चल जाएगा ओके इट इज रिलेटेड टू सम बैंक राइट। एंड वो बैंक का कैसे पता चलेगा, ऑब्वियस है जो अकाउंट आईडी यहाँ पे मेंशन हुआ है इससे पता चल जाएगा ना कि इट इज रिलेटेड टू HSBC बैंक। बस HSBC का वो मेन बैंक का और आउटगोइंग बैंक का जो भी GL है वो ट्रिगर कर लेगा, सिंपल सा बात है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आके आपको जो भी आपके जो रिक्वायर्ड बैंक है उसका जो अकाउंट नंबर है वो मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सब कुछ चेंज तो कर दिया है, होपफुली हमने एवरीथिंग इज डन। नाउ वी विल सेव इट एंड वी विल सी इट नाउ हाउ इट वर्क्स, लेट्स कम। तो चलो चेक कर लेते हैं। बिफोर चेक करने से पहले व्हाट वी विल डू, वी विल कम एंड सी /NFBL3N। एक बार चेक कर लेते कितना हमारा बैलेंस बचा हुआ है 1030 में। तो 21,000 is the balance, but this is the balance of HDFC main bank। लेकिन अभी भी हमारा अगर देखा जाए तो NFBL3N और 1040 करे तो इसमें अभी तक हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो पहले कुछ बैलेंस रख लेते हैं। तो कम टू /NFB50, ठीक है, वापस से जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही करते हैं। सपोज कुछ बैलेंस रख लेते हैं, ठीक है, डेफिनेटली हमारा 1040 डेबिट बैलेंस होगा, सॉरी डेबिट बैलेंस, लेट्स कीप इट ऑफ
वी हैव डिसाइडेड हाउ मच बैंक स्टेटमेंट अगर देखे तो हाउ मच इज द अमाउंट 21,000 इज द अमाउंट राइट तो हम यहाँ पे डेफिनेटली इसमें तो बैलेंस होना जरूरी है ना नाउ इट इज रिलेटेड टू ए डिफरेंट बैंक विच इज HSBC मेन बैंक राइट सो हम क्या करेंगे अब ऐसे ही करते हैं यहाँ पे भी 21,000 लिख लेते हैं ठीक है सो हियर and keep it as 4,000 and here's a credit balance 21,000 just press enter value date is required press enter simulate it and post it ठीक है परफेक्ट है अब अगर हम देखें तो /NFBL3N अब हमारा इसमें तो बैलेंस हो गया 21,000 का ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं कंसिडरिंग द बैंक स्टेटमेंट वी आर वेंडर का पेमेंट 11,000 का सो ठीक है FB60 करते हैं FB60 and this is vendor so if it's related to vendor तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ सो दैट इजी होगा आप लोग को समझने में सो हियर व्हाट वी आर डूइंग नाउ सो कम एंड राइट डाउन हियर ठीक है सो अभी हम ये कर रहे हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग बैंक अकाउंट ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं वेंडर है तो वेंडर का कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए पहले एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा वेंडर है ठीक है से 7,006 ही ले लेते हैं बट बिफोर दैट लेट मी चेक कोई बैलेंस ना बचा हो so open a new window come to FPL1N come to 7,005 execute it तो बैलेंस है 4200 का इसको हमें क्लियर करना चाहिए ओके मैंने 7,006 लिया है तो चलो कोई बात नहीं बस 7,006 का भी देख लेते एग्जीक्यूट इट में बैलेंस बचा है 1,000 का तो अगर मैं /NF-53 करती हूँ एंड लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस 1,000 7,006 press enter number range is missing /NOPA7 KZ 01 save it now again coming to /NF-53 and making the payment of 1,000 7,006 just press enter I think everything looks perfect let's see simulate and post it so अब कोई बैलेंस बचा नहीं कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है नहीं तो अब हम क्या कर सकते हैं वापस से सो हमने कितना डिसाइड किया था 11,000 रुपीज राइट 11,000 वेंडर है सो वी हैव टू सेलेक्ट द क्रेडिट परचेज लेट्स सी so here is the credit purchase account ठीक है and we can write down as 11,000 this time valid tax code now it is related to tax क्या so इससे पहले हम क्या करते हैं we can do one thing come to NSFS00 okay tax का remove करना ही better है so we can do come here and come to credit purchase यहाँ से हम इनपुट टैक्स हटा देते हैं ठीक है just remove the input text and just save it
Perfect. Now again come slash n f dash 53. 53 नहीं, पहले हमने पोस्टिंग ही नहीं की, राइट? FB 60. So come to vendor 7006. Give your date 11,000, 4,012, 11,000. Press enter. Simulate it and post it. And the same we will do the payment. So F-53. अब हम वो 11,000 का पेमेंट करेंगे, लेकिन इस बार कहाँ से पेमेंट हो रहा है? Considering the outgoing bank, the payment will be from 1042, right? Because 1041 was for incoming, 42 was for outgoing, right? So हम क्या करेंगे? 1042 amount will be 11,000 and 7,006. Just press enter. Value date चाहिए, fine, 20.02. Just press enter. ठीक है, हो गया, done. Simulate it and post it. ठीक है, now we will come to slash n FBL 3N and 1040. यहाँ पे अभी भी 21,000 शो हो रहा है, बिकॉज डेफिनेटली अब इसका जो भी रिफ्लेक्शन है 11,000 का, ये कब होगा? जब हम बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे. तो अभी ये हमारा बैंक स्टेटमेंट है जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था. अब बस इसको अपलोड कर लेते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल कम टू /NFF_5 और आपको कुछ नहीं करना है. Just you come here and give your variant name and just press enter. Before that, let me delete the one जो अभी हमने बैंक चार्ज के वक्त जो हमारा स्टेटमेंट जनरेट हुआ उसको डिलीट कर देते, बिकॉज हमारा सीक्वेंस अभी भी हमने 4x01 रखा हुआ है, राइट? तो उसी को कंसीडर करते हुए इसको डिलीट कर लेते. ये डिलीट हो गया हमारा. एक बार हमारा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाए मतलब क्या, ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली बीइंग पोस्टेड. बट उतनी समझ आ गई ना, बहुत है. नाउ कमिंग अगेन टू FF_5, जस्ट प्रेस एंटर एंड अगेन जस्ट गिव योर वेरिएंट नेम. सब कुछ ऑलरेडी प्री फिल्ड हो जाएगा एंड दिस टाइम यू एग्जीक्यूट इट. अलाउ, ओके. And can you see 1228 has been posted and the remaining balance is 10,000 rupees. और अगर यही सेम चीज हम चेक करते हैं अपने FBL1N में, तो आप वापस से /3N में आप आओ and give your HSBC का main bank and here it is 21,000, 11,000 deduct and 10,000 is the remaining balance जो हमने इवन बैंक स्टेटमेंट में भी यही मेंशन किया था, राइट? कि बैलेंस विल बी हाउ मच, 10,000 रुपीज. परफेक्ट. अब देख लेते हैं GL सही ट्रिगर हुआ है या नहीं हुआ है. तो इसको आप डबल क्लिक करो और आप इस पे सेलेक्ट करो and see this time the correct bank HSBC has been triggered. Fine. परफेक्ट. सो ये होता है मास्किंग का रोल. अभी आपको क्या करना पड़ा, आपको मल्टीपल बैंक्स ना तो उसके पोस्टिंग रूल डिफाइन करने पड़े, ना ही मल्टीपल अकाउंट सिंबल डिफाइन करने पड़े, ना ही मल्टीपल ट्रांजैक्शन टाइप डिफाइन करने पड़े. डेफिनेटली हमने ट्रांजैक्शन टाइप एक से ज्यादा डिफाइन किया बिकॉज अकाउंट नंबर हमें असाइन करना था. बस उतना ही करना पड़ा. और GL की जगह जहां पे हम अकाउंट सिंबल मेंशन करते हैं /NOT83, वहां पे हम एग्जैक्ट GL नहीं मेंशन करके हमने क्या किया, मास्किंग का रूल अप्लाई किया. तो जिसके तहत क्या हुआ, यू जस्ट गिव प्लस 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 एंड उसने एग्जैक्टली पिक कर दिया HSBC. हाउ?
from the bank statement, from the help of bank statement, because वो चेक करा कि ओके बैंक स्टेटमेंट में अकाउंट नंबर ये दिया हुआ है और ये अकाउंट नंबर लिंक्ड है एचएसबीसी बैंक से, बस फिर। और यही यही कारण है जो मैंने बोला था आप लोगों को कि सीक्वेंस मेंटेन करना। आपको याद होगा ना, 0 1 2 जो मैंने बोला था कि जब जीएल क्रिएट करते हो तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अगर सपोज अगर आपने एच यहाँ पे अभी आपने क्या किया था, एचडीएफसी का 1030 किया था एंड एचएसबीसी का 1040 किया था, है ना। तो एससीपी कैसे देखता है, एससीपी ये सीक्वेंस चेक करता है। एससीपी ये तो देखेगा ही कि ये कौन सा हमारा अकाउंट नंबर है, किस बैंक से रिलेटेड है, प्लस वो सीक्वेंस भी देखता है। ओके, लास्ट हमारा 0 है और यही 0 0 पैटर्न सब में बनते आ रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एचएसबीसी हो, या आगे और भी बैंक हो। तो बस वो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रिगर कर लेता है जो भी अकाउंट नंबर जिससे मैच कर रहा है उस बैंक अकाउंट का। लास्ट 0 के बेसिस पे मेन बैंक अकाउंट, लास्ट 1 के बेसिस पे इनकमिंग बैंक, एंड लास्ट 2 के बेसिस पे जो भी रेस्पेक्टिव उस बैंक का आउटगोइंग बैंक अकाउंट, राइट। लेकिन यही अगर आप सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते तो फिर वो एरर आता है, बिकॉज एसएपी ट्रिगर नहीं कर पाता है। दैट इज द रीजन we maintain this sequence. So I think I have explained you vendor, customer, bank charges, same goes with bank interest. वो आप खुद भी अपने end से कर लेना try. And this is here where we end the topic of electronic bank statement. Hope आप लोगों को सब कुछ बहुत perfectly समझ में आ गया होगा किस तरीके से GL account trigger किया जाता है and what is the masking process, how everything works. ठीक है, and please do not get confused when it related to outgoing and incoming. Always make it sure that you have to make a prior transaction in order to create this journal entry or this journal entry. Once you get upload your bank statement, then actual हमारा ये transaction होता है, ठीक है। So I hope everything is you must be understood very well. So that's it. That's all about today's class. Thank you and have a good day.